अस्सलाम वालेकुम। अच्छा गाइस, थोड़ा-सा सीन कुछ ऐसा है कि आज का जो सेशन है वो एक्चुअली हम डिस्कशन करते हैं। थोड़ा आज कनाडा पे डिस्कशन नहीं है। मैं वो आप लोगों के सवाल जो है वो नेक्स्ट लाइव सेशन में ले लूँगा। अ, बात कर लेते हैं उसके ऊपर इंटरनेशनल बिज़नेस स्कूल ऑफ बुडापेस्ट के ऊपर, क्योंकि बहुत अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट का वीज़ा लगा है फॉर बुडापेस्ट और उसमें ट्रैवल कर रहा है वो, तो मे बी मैं उसको भी लूँगा। लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग जो है वो अ, वहाँ के हेड ऑफ मार्केटिंग एंड एडमिशंस जो हैं, मे बी ही वुड जॉइन अस आज। तो उनसे थोड़े-से अगर आपके सवाल आते हैं कि भाई वहाँ पे पीआर कैसे होता है, या डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है, या मास्टर्स जो है वो लाइक जॉब मार्केट कैसी है, ऐसे सवाल कर सकते हैं। बाकी कमेंट्स में देख रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम सबको। एक भाई का सवाल आया मुझे सलीम का कि शजी भाई कनाडा बेस्ट है या यूएसए एज अ स्टूडेंट? कनाडा आई थिंक बेस्ट है क्योंकि पीआर के चांसेस ज़्यादा हैं, आपकी जल्दी हो जाएगी 3-4 साल में। यूएस में थोड़ा-सा इश्यू होता है। यूएस का इश्यू ये होता है कि भाई यूएस में एटलीस्ट आपको 10 साल ग्रीन कार्ड के लिए रुकना पड़ता है। मुज़फ़्फ़र दोगर कहते हैं कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। रमीज़ुद्दीन सलाम, होप यू गाइस आर वेल। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरज कुमार हिंदुस्तान ज़िंदाबाद। बिल्कुल, बिल्कुल। 1 सेकंड रुकिएगा। ओके, उसके बाद मुस्तफ़ा दोगर कहते हैं भाई सीएफए का क्या स्कोप है कनाडा में? यार सीएफए है ही लाइक इधर का है तो वो उनको यही करते हैं। ओके गाइस, मैं थोड़ा-सा ऐड करता हूँ। जो हेड ऑफ मार्केटिंग मिंडे मिस्टर लेनवाय हैं आईबीएस के, तो मैं उनको जॉइन करवाता हूँ और उनसे बात करते हैं। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस जस्ट राइट डाउन इन कमेंट्स, तो हम लोग फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। हाय, Hello, good afternoon. गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू लेनवाय? हाउ आर यू? कैन Can यू you हियर hear मी? me? Because I cannot hear you. You can't hear? Okay, perfect. So everybody is here. Can we start our show? Great. Welcome you all. My name is Laszlo Landway, and I'm heading the marketing and admissions at the International Business School in Budapest. So I would like to give you a brief presentation about IBS to explain more about our university. Sorry for the background. I'm on holiday in Austria, so that's why I'm not in the office. But I Nice. still wanted to be with you, so I would like to give this presentation. Okay, so IBS is a private university in Hungary, in Budapest. And by the way, we also have a campus in Austria, in Vienna. And we are cooperating with the University of Buckingham. The University of Buckingham is also a private university in the UK, which is one of the best UK universities. They are ranked in the top 20 in all of the rankings. And they are especially good in student satisfaction, which is very important, and also for job search for students. So we are cooperating with the University of Buckingham for many years, and this means that students who are coming to IBS will receive 2 degrees, one from the University of Buckingham and one from IBS. So when you graduate from any program at IBS, you will be having 2 degrees in your hands, one UK degree and one European degree. With that, you are free to go anywhere in the world, so you can have a great career with those degrees. We are an international university, which is not just our name, but also our student body and our professors team. We are welcoming students from more than 100 countries. So you can see it's a very, very international university. The majority of the students are coming from abroad. So the minority is from the local students. On bachelor level, we have about 55% international students. On master level, we have about 85-90% of our students coming from abroad. As I mentioned, these students are coming from many, many countries from all over the world, from Asia, Africa, EU, United States, all American continents, even as students from Australia. It's a very diverse student body that you will experience at IBS.
We have been cooperating with the University of Buckingham for more than 10 years. So it's a very experienced team that we are making with the University of Buckingham. So all of the education is in English, obviously. We are accredited in the United Kingdom as well. So we have UK accreditation. We also have obviously the Hungarian state accreditation. So we have EU accreditation as well. And we have made 2 years ago the German accreditation by FIBA. So we are accredited by an independent German accreditation body as well, which guarantees a very high quality of education for you. We are offering programs on bachelor level, master level, and PhD level for you. On bachelor level, we have business and management, we have business and diplomacy, and we have finance program. And within management, we have specializations like tourism, marketing, psychology and HR, and arts management as well. All of these bachelor programs are 3 years long. They lead to double degree, as I mentioned before. And these 3 years contains of 5 semesters of studies, and 1 semester is either for study abroad, so you can visit one of our partner universities in Europe or in the US or some in Asia, or you can do an internship at one of our corporate partners. We are partnered with huge multinational corporations like ExxonMobil, BlackRock, KPMG, Shell Oil, British Petrol, so huge multinational corporations which are offering positions for our students for this internship, and of course after graduation as well. The bachelor program, as I mentioned, is 3 years long. Nice. This internship or study abroad period is in the 5th semester of the studies. And we are offering very generous scholarships on the bachelor program. We have a 25% starter scholarship for the first semester. And from the second semester on, we have 75% scholarship for those students who are performing really well. So you have to achieve high grades at your studies at IBS, and you can get 75% scholarship. This is valid all through the 3 years, which you can get. On master level, we are offering international management, human resource management, strategic financial management, strategic marketing. We have IT and data analytics. These master programs are 1.5 years long, which actually means that you will be studying for 1 year, and there is 1 extra semester for writing your dissertation. These master programs are full-time programs, but we have designed the schedule in a way that you will be studying during the evening hours. So we are starting our classes at 6 o'clock in the evening, and they are until 9 o'clock in the evening. And this way you have the whole week off, which means you do have the possibility to work full-time. You probably know that all over Europe, and especially in Hungary, there's a huge scarce of workforce. So it's quite easy to find a job now. And it will be obviously a professional job, not a part-time job, not like working in a bar or something like that. These jobs are professional jobs at KPMG and ExxonMobil, BlackRock, or Citigroup, or huge multinational corporations with which we are teamed with. So you have the chance to work full-time. Now, this is a chance for you to do, and it will be quite easy to get a job. However, I have to stress that it is absolutely not easy to study and work at the same time. It is a 1-year-long program, so it's very challenging and very demanding. And even though we are facilitating the job search for you, and we are helping you to find a good career pathway, still having a job is not an excuse to miss classes. Okay, it's very important that if you're coming to studies, you have to concentrate on your studies first. This is especially important on the master program because there are no exams on our master programs.
You will be Okay. receiving your grades based on your performance during the classes and based on your home Mhm. assignments and Mhm. presentations. So it's Okay. extremely important that you must be present on the classes, okay? Mhm. Because if you miss more than 30% of the classes, you will not be able to get grades on your class performance, which means that you will be failing from that subject. So it's Okay. very, very important that you are present on the classes, and not just because of the grades, because also it is very important that we have a very practice-based approach during our Mhm. classes. Our professors are coming from the real world, from the real business world. We have the former vice president of the Hungarian National Bank teaching finance. We Wow. have the former marketing director of Vodafone and the Deutsche Mhm. Telekom teaching at IBS and marketing program. We have former ambassadors teaching on our diplomacy program. We have the financial director of Microsoft who's teaching finance. So huge and well-reputed business persons are teaching on our program. So it is actually worth to attend the classes because you can get an insight of the real business world. So I'm always telling our Yeah. students that there is a good chance to work and study at the same time, but when they come, they should concentrate on the studies first. And if they feel that they can manage the two together, then of course they are free to go and they can get a job and start working. Oh, It will nice. be easy to find a That's job. great. So within 1 or 2 months, I believe that you will be able to find a decent job for yourself. Also on master program, we have quite good scholarship ranging from 10% to 35% based on the CGPA that you have received in your previous studies, on your bachelor or previous master studies. So you can get Mhm. up to 35% scholarship on master level as well. Okay. Okay. And finally, we have the PhD programs, which are 3 years long. They are purely research-based PhDs. So you will have a research tutor for your PhD studies, and you will be consulting with the tutor, and you will be doing your own research during the program. By the way, the Mhm. bachelor program is 3,700 euro per semester. The master program is 5,900 euro per semester, and the PhD program is 3,100 euro per semester. So if you Okay. compare the prices to the UK prices, you will see that the tuition fee is less than half at IBS than in the UK. And if you Mhm. compare the living cost, you will realize that it's less than third than in the UK. So even if you Mhm. consider having a part-time job in the UK, like working in a bar or something, you will actually ending spending much more than you would be doing in Hungary without having a part-time job. So with that, you can concentrate on your studies and you can excel in your studies. Mm. And after that, Nice. obviously, you have the chance to stay and work in Hungary. You will be able to find a job very easily. So within 1 or 2 months, 99% of our students are finding a good job. We have a very flexible immigration policy. So students can stay in Hungary. With your student permit, you will have 6 months extra, which is Okay. provided by IBS to look for a job. Okay. And even after that, you will have 9 months extra from the government for job Mhm. search. Now, 15 months is 5 times more than enough to find a job in Hungary. So within Mhm. 3 months, you should be able to find a decent job Mhm. for yourself. And with that, Okay. you can apply for a residence permit for job purposes, Mhm. with which you can stay for up to 2 years, and you Mhm. can extend this job permit as many times as you wish. But after Mhm. 5 years, you are eligible for permanent residency. Okay, Oh. so you can Whoa. easily settle in Hungary. Mhm. And Okay. after 8 years of staying here in Hungary, you can apply for citizenship, which means that you can have a European passport for yourself. Now, the only Wow. difficulty with the citizenship that you have to speak Hungarian, so you have to study the local Mhm. language.
but that is only condition for the citizenship. So for job and for permanent residency, there is no need to speak the Hungarian language. Everything is in English. So you will get a job in English. You will be living in Hungary easily, communicating in English. So there is no need to study the Hungarian language if you don't want a citizenship. But obviously, I have many friends here in Hungary who have settled here. They have learned the Hungarian language, which is said to be one of the most difficult languages of the world. Still, my friends within 5 or 6 years are excelling in this language. So it's not impossible to learn it. So don't worry. If you really want to learn it and you want to stay in Hungary, you can do so. And with that, you can have the citizenship of Hungary, which is an EU citizenship. Probably you know that we are located in the Schengen zone. Oh, yeah. So you can travel freely within the European Union in all of the countries which are in the Schengen zone. It does not mean that if you get a Hungarian visa, then you can go anywhere and stay there for as long as you want. But it allows you a 90 days travel to anywhere in the Schengen zone. After that, you have to return to Hungary. Obviously, if you would like to settle somewhere else, so let's say if you want to work in France or Germany, you can also do so. You can travel to Germany for 90 days. You can apply for jobs there as well. And if you get accepted, then you can travel there and change your residence permit for a German residence permit, and then you can settle there as well. So it's all up to you. But as I mentioned, there are extremely good career opportunities in Hungary at the moment. So it is worth to stay in Hungary and start your career. If you are starting a work at the multinational corporations here in Hungary, after 1 or 2 years, they are actually rotating the students, even in the different fields. So let's say you have started working in marketing, they will be offering you a position in finance or in HR, so you get to know better the company itself. And they will be also rotating in between the countries as well where they are located. So if you start working for Shell Oil, I'm sure that they will be rotating you to another country within 2 or 3 years. Wow. So you have the chance to work in different countries if you're working for the same company. So there are plenty of opportunities to experience an international environment at the company as well. And of course, building up a really great career for yourself. Okay. So basically, that was a short presentation about IBS. And right now, I'm very happy to answer your questions that you might have. Okay, so I have a couple of questions here. I have some questions here in the comment section. Okay. So the first question that comes up is that I cannot hear you, so I don't know whether you're talking to me or not, but I cannot hear you. Can you hear me now? Can you hear me now? I cannot hear you, Shaji. Can you hear me? Or if there is a chat function in this software, then you can ask your questions via chat as well, and then I can answer them that way as well, if that is good. Okay, can you hear me now? It's all good? No? Can't hear me? Okay. Have you seen the comments? Are there any questions? Yeah, there are any questions? I don't think so. Wait, I'll just reconnect. Wait. Also, you know that we have regional representatives, and we have a regional manager for Asia and Africa, which is Jawad Fakhar. He has been with IBS for more than 10 years.
as our employee, and he knows everything about immigration regulations Okay. and everything. He has lived here in Hungary for a year as well last year. So he knows everything about the country, about the immigration regulations. So he's always there to help you in all of the questions that you might have. So you can contact him as well for all questions. Okay. Okay. If you have questions now, you can also ask me. You can go in the chat room. Okay. Okay, it's all good for now. I think the voice is not clear, so I might need to like reassess this session. So, thank you so much, Mr. Linway. For now, I'll just hang up the call, and I have some queries with my people out here. So I'll just answer their queries, and let's meet you in another session. Thank you so much. Okay. I cannot hear you, Shaji. Are we closing the session or? Yeah, yeah, it's Okay. all Well, closed right now. thank you Yeah, very much for your thank you. attention. I was very happy Okay, to be with you, and I'm looking forward to seeing you at IBS. Okay. Thank you for so much sure, for for being sure. with me tonight. Thank Okay. you. Thank you. Thanks. Goodbye. Bye. Bye. Thank you. Bye. ओके गाइस, आई थिंक उनको थोड़ा-सा इश्यू हो रहा था विद रिस्पेक्ट टू वॉइस। मैं आपको थोड़ा-सा आंसर कर देता हूँ। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बता दी हैं। आई जस्ट टेक द कमेंट्स राइट नाउ और हम इसको सेशन को पे जो है वो ये लेते हैं। ओके, तो हम लोग बात करते हैं जस्ट गिव मी अ सेकंड। आई ट्राई माय बेस्ट कि अगर एक हम जवाद को ऑन ट्राई कर लेते हैं अगर वो अवेलेबल हैं। उम, उम, उम। ओके गाइस, थोड़ा-सा हम लोग सवालात ले लेते हैं, ठीक है? एक भाई का सवाल आया था मुस्तफ़ा का कि इस टर्म ऑफ कंपैरिज़न बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड हंगरी व्हाट आर योर व्यूज़? यार आई थिंक इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस वगैरह नहीं है ऑस्ट्रिया हंगर का एज़ वी गेट वर्क परमिट फॉर द कंट्री इन व्हिच वी हैव डन आवर पोस्ट ग्रेजुएशन एसीसी बैकग्राउंड। हाँ, लेकिन उन्होंने यही बात करी ना इसमें कि भाई अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हंगरी में हो तो आपको हंगरी का वर्क परमिट मिलता है लेट्स से, ठीक है? आपको हंगरी का वर्क परमिट मिलता है, ठीक है? अब बेस्ड ऑन दैट अगर आपको हंगरी का वर्क परमिट मिलता है तो आप 1 साल उधर भी काम कर सकते हो, ड्यूरिंग स्टडी वीज़ा भी आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो, वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है पार्ट टाइम जॉब करने की। वहाँ पे आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और उन्होंने यही बताया कि द क्लासेस आर इन इवनिंग मतलब 6 टू 9 क्लासेस हैं और सुबह के टाइम पे आप जो है वो अपनी फुल टाइम जॉब कर सकते हो। तो उसमें यही बता रहे थे कि केपीएमजी हो गया, एक्सॉन मोबिल हो गया, शेल हो गया, बाकी जो कंपनीज़ हो गईं, वो उधर लड़के काम ऑलरेडी कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं बुडापेस्ट में, राइट? उसके बाद सीन कुछ ये है कि जो एसीसी बैकग्राउंड वाले हैं पर्टिकुलरली उनके लिए तो वहाँ बहुत डिमांड है। अभी एक जो है वो सैयद अली मूसा ज़ैदी का वीज़ा लगा है, उसके ऊपर भी उनके पास मैं कोशिश करता हूँ, उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं थी। अगर वो लाइव सेशन में आ जाएँ तो उनसे मैं पूछूँगा कि भई हाउ ईज़ी वाज़ द प्रोसेस? और अगर आपकी फैमिली भी है, अगर लाइक वाइफ है और इस तरह है, तो भी वीज़ा चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कंपैरेटिवली टू अदर स्टेट्स। अच्छा, एक चीज़ जो ये बोल के गए, ये मेबी मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन वो बहुत अच्छी थी कि एक तो आपको कंपनी ऑफ़र कर देती है, एक तो कंपनी आपको सब्सक्रिप्शन ऑफ़र कर देती है कि भाई आप यहाँ पे रहो, ठीक है? कि आपको एक स्पॉन्सरशिप कर देती है, सॉरी सब्सक्रिप्शन बोल रहा हूँ, स्पॉन्सरशिप आपको कर देती है कि आप रहो यहाँ पे। आपको जब स्पॉन्सर कर रही होगी ना, तो आप 1-2 साल वहाँ पे रुकोगे और उसने यही बोला कि अगर आप 1 साल का मास्टर्स करते हो
और फिर आप 2 साल का ड्यूरिंग मास्टर्स आपने जॉब करी, उसके बाद आपको वहीं पे जॉब कंटिन्यू करने को मिल जाती है आफ्टर ग्रेजुएशन। आपने 2-3 साल, 4 साल वहाँ पे जॉब करी, जैसे कनाडा का है वैसे ही उधर का है, लेकिन थोड़ा-सा सिटीज़नशिप मेरे ख्याल से लेट है। 8 साल में सिटीज़नशिप मिलेगी, तो अगर आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, उसके बाद आपका वर्क परमिट है। वर्क परमिट ये है कि आपको कंपनी स्पॉन्सर करेगी, गवर्नमेंट की तरफ से कोई वर्क परमिट नहीं है, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में आपको कंपनी स्पॉन्सर करती है, लेकिन आप जॉब ही कर रहे होते हो फुल टाइम, तो इट्स रियली ईज़ी टू गेट इन, राइट? उसके बाद अगर आप अपना करते हो, उसके बाद 5 साल के बाद आप पीआर ले सकते हो, परमानेंट रेसिडेंसी ले सकते हो, और वो पीआर की शेंगेन स्टेट की होगी। शेंगेन स्टेट का मतलब ये कि अब आपके पास पूरा यूरोप खुल गया। आप फ्रांस जा सकते हो, आप जर्मनी जा सकते हो, आप इटली जा सकते हो, आप लक्ज़मबर्ग जा सकते हो। मैं लक्ज़मबर्ग के ऊपर भी अभी काम कर रहा हूँ, और भी मैं शहरों के ऊपर काम कर रहा हूँ कि जो अच्छे शहर हैं, जहाँ पे चांसेस या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो मैं उनके ऊपर काम कर रहा हूँ, राइट? अ ये कोशिश आप करें कि भई ये कोशिश आप लोग करें कि भाई आप लोग देख लें, अगर पॉसिबिलिटी आपको बनती है, आप लोग मुझे ईमेल करें इफ़ यू नीड हेल्प विद एडमिशन। मैं ट्राई करूँगा कि भाई आपका कम परसेंटेज भी है, तो आपका एडमिशन हो जाए, चांसेस हों कि आपके एडमिशन्स के चांसेस आपको मिल जाएँ, राइट? हमज़ा फारूक पूछते हैं, प्लीज़ हैव अ अलुमनाई ऑन बोर्ड फ्रॉम एसीएफ बैकग्राउंड। मैं कोशिश करता हूँ, बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ। ज़रेज़ पूछ रहे हैं, अगर हम 60% से नंबर कम है तो वीज़ा लग जाता है? हाँ, इधर का वीज़ा रेशियो जो है वो ऑलमोस्ट 99% है, तो वीज़ा रेशियो लग जाता है। भाई देखो, कभी-कभी क्या होता है कि आप, अगर इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ हुआ है, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, यूके का। अगर आप इधर चले जाओ, अपना मास्टर्स करो, 2-3 साल जॉब करो। इधर अगर तुम 3 साल भी जॉब करते हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सस्ते में पढ़ते हो, ड्यूरिंग स्टडीज़ आप फुल टाइम मास्टर्स करते हो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बैचलर्स किया, बोलते नहीं यार अब मुझे फुल टाइम नहीं पढ़ाई करनी। आप यहाँ पे पार्ट टाइम पढ़ाई करते हो, फुल टाइम जॉब करते हो, 3 साल जॉब करके कनाडा की जब इमिग्रेशन अप्लाई करोगे, आपके यहाँ से पॉइंट्स बहुत ज़्यादा शूट हो जाएँगे। आपके पास चांस होगा, आपको उधर की मिलती है इमिग्रेशन, आप वहाँ का पासपोर्ट ले लो, नहीं मिलती तो आप कनाडा के लिए ट्रैवल कर जाओ, नहीं तो आप यूरोप में भी घूम सकते हो। अभी भी तो देखो कि यूरोप में कितनी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिल जाएँगी। आपको खाली वो बुडापेस्ट में नहीं रहना, आपको लक्ज़मबर्ग रह सकते हो, आप फ्रांस रह सकते हो, जर्मनी रह सकते हो, इटली रह सकते हो, तो देयर आर सो मेनी चांसेस, राइट? सो मेनी कंट्रीज़ वेयर यू कैन मूव इन। तो आप बहुत ज़्यादा जगहों पे मूव इन कर सकते हो। हमज़ा फारूक बोलते हैं कि प्लीज़ हैव अलुमनाई ऑन बोर्ड फ्रॉम एसीएफ बैकग्राउंड। मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ। सकलैन शेख पूछते हैं कि शजी भाई, व्हाट अबाउट द प्रैक्टिकल नॉलेज इन फाइनेंस? प्रैक्टिकल नॉलेज ही का तो फ़ायदा है। भाई देखो, वहाँ पे डेटा एनालिटिक्स जिनको प्रोग्राम करना है, डेटा एनालिटिक्स ऑफर हो रहा है, एंड ग्रीन फॉक्स अकेडमी है, उनका उनके साथ कोलैबोरेशन। ग्रीन फॉक्स अकेडमी इज़ वन ऑफ द टॉप अकेडमी फॉर डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम्स। ठीक है? वो लोग वहाँ पे उनके साथ उनका कोलैब है कि वो उनके टीचर्स आके उनको बताते हैं डेटा एनालिटिक्स, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स हर कोई नहीं पढ़ा सकता। प्रैक्टिकल नॉलेज तो यही है कि भाई आपको फुल टाइम जॉब मिल रही है और पार्ट टाइम आप अपना पार्ट टाइम स्टडीज कर रहे हो, फुल टाइम जॉब कर रहे हो, तो इट्स अ रियली, आई बिलीव इट्स अ रियली गुड ऑप्शन फॉर दोज एज वेल, जिनकी फैमिलीज हैं, दे हैव लाइक मैरिड हैं और बोल रहे हैं नहीं यार हमें वीजा रेशो का मसला है कनाडा में। इट इज ऑल्सो गुड फॉर दोज जिनकी परसेंटेज कम है, मूव कर सकते हैं। लेकिन देखो फिर भी कंडीशन ये है कि भाई वो लोग भी एक्सेप्ट करें, ऐसा ना, क्योंकि आपको यूके की डिग्री दे रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी की डिग्री, यूके की डिग्री यहाँ पे 4 साल की इक्विवेलेंसी बनती है। इसी तरह वहाँ पे मतलब लाइक बैचलर्स की डिग्री की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि पूरी दुनिया में कहीं भी जाओ, आपको मास्टर्स जो है वो 2-2, 3-3, ढाई-ढाई साल का मिलेगा। 2 साल का तो एटलीस्ट होता ही है, 3 साल का तो खैर नहीं होता, 2 साल का होता है। इधर आपको मिलेगा 1 साल का मास्टर्स, और उस 1 साल में भी आप फुल टाइम स्टडीज़ कर रहे हो। तो दैट्स आई बिलीव अ प्रीटी गुड ऑप्शन एज़ वेल। ठीक है? अच्छा, रमीज़ुद्दीन पूछते हैं कि भाई, सो माय क्वेरी इज़ आई एम 31, आर्ट 6 जे, आई हैव डन 2 इयर्स बीए फ्रॉम केयू एंड हैव 2 इयर्स टू अ टेक्निकल डिप्लोमा इन एनिमेशन, थीसिस एंड ओवर 9 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एनिमेशंस कंटिन्यू। कैन आई बी एलिजिबल फॉर मास्टर्स इन यूरोप और यूके? आई डोंट माइंड डूइंग अ टॉप अप सेमेस्टर। हाँ, बहुत आराम से आप हो सकते हो। आप मुझे ईमेल करो बिल्कुल कि भाई आप इधर वीज़ा के लिए अप्लाई करो। आई बिलीव आप तो जॉब के लिए अप्लाई करो। अगर आप यहाँ पे जाते हो, और एनिमेशन इंडस्ट्री जो बाहर एनिमेशन इंडस्ट्री है, नॉर्थ अमेरिका साइड पे, यूरोप साइड पे, वो बहुत बड़ी है एज़ कम्पेयर टू जहाँ हम बैठे हुए हैं, पाकिस्तान या इंडिया या मिडल ईस्ट में, राइट? उधर से बहुत ज़्यादा बड़ी जॉब मार्केट है। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वैंकूवर में हूँ, तो वैंकूवर में एनिमेशंस, ये फ़िल्म सिटी भी कहलाती है। फ़िल्म सिटी क्यों कहलाती है? क्योंकि यूएस के बाद कनाडा के अंदर एक ही शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा फ़िल्म्स जो हैं। इवन मैंने उस दिन आप लोगों ने सुना होगा जॉन सीना को, राइट? मैंने उस दिन उसको, जॉन सीना को, ऐसे चलते हुए जा रहा था मेरे सामने से। मैं खुद देख रहा हूँ उसको, यार ये कौन है? मैंने कहा भाई जॉन सीना भाई, इसकी तो बचपन में हम लोग लाइक रेसलिंग देखते थे, डब्ल्यूडब्ल्यूई, राइट? तो वो चलता हुआ जा रहा था, तो वहाँ पे फ़िल्म की शूटिंग्स वगैरह भी होते हैं। मैं वो बस क्लिक्स नहीं कर पाया, मैं उसको देखते ही रह गया।
खैर वो बचपन से पसंद था मुझे तो मैं खैर उसको देख ही रहा था। तो ये सीन है लाइक आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ खुलती हैं। मैं अभी भी आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि इफ यू गाइस आर प्लानिंग टू मूव, मूव नाउ। On the basis of CF, Canadian government don't issue study visa. What will be the procedure for us to get CPA Canada pathway, please? फज़ियाब आपको आप ACCA मेंबर होने के बाद ही कैनेडियन CPA ले सकते हो, लेकिन CPA कनाडा की जो है वो एक वो आ गई है रिस्ट्रिक्शंस आ गई है कि आपको बाहर मतलब आप बाहर से नहीं कर सकते। लाइक आप कनाडा में होने चाहिए CPA की इक्विवेलेंसी के लिए, वो आप बाहर से अप्लाई नहीं कर सकते कि मुझे इक्विवेलेंसी दे दें। वो बंद कर दिया अब उन्होंने। मुस्तफा पतनवाला कहते हैं व्हाट स्कॉलरशिप वन कैन गेट इफ आईबीएस इफ यू आर एबल टू अचीव फर्स्ट क्लास और अपर सेकंड क्लास ऑनर इन ओबीटी डिग्री। अच्छा अब ये डिपेंड करता है, अब ये आपको 20% 30% 35% कुछ भी स्कॉलरशिप्स आपको मिल सकती हैं बेस्ड ऑन योर, जैसे वो बोल के गया बेस्ड ऑन योर सीजीपीए, राइट? आपका सीजीपीए डिपेंड करता है कि अगर आपके बैचलर्स में अच्छा सीजीपीए तो वो लोग आपको ऑब्वियसली चांस देंगे फॉर द स्कॉलरशिप। और मेरे ख्याल से यार सस्ता बहुत है कंपैरेटिवली। अगर आप देखो, अगर आप ये सोचो ना, देखो होता क्या है जब आप बाहर निकलते हो ना, आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगते हैं। जब आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगते हैं तो आप मूव इन मूव आउट कर सकते हो हर जगह। आपके पास, आप जैसे उसने बोला कि आप 90 डेज आपके पास हैं, आप कहीं भी मूव कर जाओ। आप जर्मनी चले जाओ, आप फ्रांस चले जाओ, आप इटली चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ जॉब मार्केट ढूँढने के लिए। आप घूमने गए, भाई बोला मैं 90 दिन के लिए घूमने जा रहा हूँ और मैंने जॉब भी ढूँढता रहा। इस तरह बंदा करता है। तला यासीन पूछते हैं कि व्हाट आर द एडमिशन रिक्वायरमेंट मास्टर्स डिग्री? आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए मिनिमम, आई थिंक 50-60% तो होनी चाहिए आपकी। इतनी कोई टफ रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर टफ रिक्वायरमेंट होगी भी तो हम वो देख लेंगे क्या है। मैं जितनी हेल्प मैं कर सकता हूँ, जवाद मिस्टर जवाद फकर होते हैं, मे बी ही वाज ट्राइंग टू गेट ऑन कॉल बट उनका शायद कनेक्शन नहीं हुआ, तभी ही वाज नॉट एबल टू गेट ऑन कॉल। तो इट वाज ग्रेट सेशन। तो इसमें यही चीजें हम लोगों ने कोशिश करी कवर करें कि भाई लेट्स लाइक कि एडमिशन रिक्वायरमेंट्स ईज़ी हैं, इतनी कोई इश्यू की बात नहीं है। अगर आपका लाइक आपका 2 साल का बीकॉम हो रहा है और आपका पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तब भी इट्स गुड। आपके पास बैचलर्स डिग्री है तब भी इट्स गुड फॉर अ मास्टर्स। अगर आपके पास इंटर या ए लेवल्स में आपके पास कम परसेंटेज है, थोड़ा नॉर्मल से ग्रेड्स हैं, देन इट्स आल्सो गुड। ठीक है भाई। उसके बाद हमज़ा फारूक पूछते हैं एनी एप्लीकेशन फ़ी वेवर्स? जी, आप अगर मेरे रेफरेंस से जा रहे हो तो आपको एप्लीकेशन फ़ी वेवर ज़रूर मिल जाएगा, बट मेक श्योर कि उस एप्लीकेशन फ़ी वेवर का फुल फ़ायदा उठाएँ। आपको अराउंड 200 यूरो आपके बचा रहा हूँ मैं, तो इससे ज़्यादा मैं तो वही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना कोलैबोरेशन करके लोगों के साथ आपके पैसे बचा सकूँ। कनाडा के लिए भी मैं यही कर रहा हूँ। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ सबके लिए कि भाई मैं जितने लोगों के पैसे बचा सकूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि भाई जितने लोगों के पैसे बच सकें। तो एप्लीकेशन फ़ी अब वेवर आपको मिल जाएगा, आपको एडमिशंस मिल जाएँगे। उसमें आपकी कोई कॉस्ट नहीं होगी। सॉरी। ओके। सैयद कुमैल हैदर पूछे शशि भाई प्लीज़ टर्न ऑन इंग्लिश सबटाइटल्स। यार ये मैं इस पे करना है, मुझे मुझे थोड़ा-सा सीखना है। स्ट्रीमयार्ड पे मैं लाइव आता हूँ, मुझे थोड़ा-सा उसको सीखना है, तो लेट्स सी, मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ। सो इज़ देयर एनी अप्रूव्ड एजेंट फॉर इंटरनेशनल बिज़नेस स्कूल ऑफ हंगरी? मिस्टर जवाद फ़खर हैं, ही इज़ नॉट एन एजेंट, ही इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिज़नेस स्कूल। उसने बोला भी कि वो बुडापेस्ट में भी रहता है और रह चुका है। इनफैक्ट पिछले साल पूरा वो बुडापेस्ट में ही थे। तो ही इज़ क्वाइट अ गुड पर्सन, बड़ा जॉली टाइप का बंदा है एंड ही इज़ रियली गुड। आपसे उसकी ऐसा बंदा है, वो दोस्ती कर लोगे आप उससे। तो ही इज़ रियली गुड पर्सन और गाइडेंस उससे अच्छी देता है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैं तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इफ आई वुड नॉट हैव बीन इन कनाडा आई वुड हैव बीन हियर इन बुडापेस्ट। क्यों? क्योंकि इसमें अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत थी। आप फुल टाइम जॉब कर सकते थे, आपको पाकिस्तान में मेबी बिग 4 का चांस ना मिले, शेल का चांस आपको कभी भी नहीं मिल सकता। पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो शेल में काम करते हैं। आपको केपीएमजी, शेल, ब्लैक रॉक इज़ वन ऑफ द टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, राइट? अ, ये सारी चीज़ें हैं। तो अप्रूव्ड एजेंट सैयद कुमैल हैदर अप्रूव्ड एजेंट नहीं है, ही इज़ पार्ट ऑफ द आईबीएस टीम, एडमिशंस टीम के पार्ट हैं। ही हेल्प्स इन द वीज़ा एंड इमिग्रेशन स्टफ। सो फिर अगेन मैं अपनी जिसको जो भी इंटरेस्टेड है फॉर द एडमिशंस, तो मुझे जो है या प्लान कर रहा है या चलो प्लानिंग भी कर रहा है या देखना चाहता है कि एडमिशंस हो रहे हैं या क्या सीन है, तो मैंने अपनी ईमेल डाल दी है। इधर आप मुझे अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आप ईमेल कर दें, तो आई विल फर्दर लुक फॉरवर्ड इनटू इट। और अगर हम बात करें मुस्तफ़ा पटनवाला की, आर देयर एनी लैंग्वेज बैरियर्स लाइक द वंस इन जर्मनी फॉर मास्टर्स इन? कोई आपको नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ मुस्तफ़ा पटनवाला की, बेस्ड ऑन योर एचसीसीए यू हैव अ गुड एंड इन फैक्ट अ ग्रेट चांस टू एक्सेल इन योर करियर इन बुडापेस्ट पर्टिकुलरली। और फिर मैंने ये नहीं कहता कि भाई बुडापेस्ट में गए हो तो कहीं पे भी गए हो तो वहीं पे बैठ के रह जाओ। आप मूव आउट कर सकते हो। आप निकल जाओ ना, कहीं और कंट्री निकल जाओ, आप लग्ज़मबर्ग की तरफ निकल जाओ, कहीं और मूव करना चाहो, मूव कर सकते हो। आपको कहीं पे भी जॉब वीज़ास मिल सकते हैं। तो इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है?
मुस्तफ़ा लिविंग कॉस्ट ऑस्ट्रिया के अंदर तकरीबन 1000 यूरोज़ है, ठीक है? और उसकी तकरीबन अराउंड 700 से 800, अगर वो बहुत ही अच्छी जीती लाइफ़ जी रहे हो तो अराउंड 1000 यूरोज़ है, वरना अदरवाइज़ इट्स अराउंड 700-800 यूरोज़ है, इससे ज़्यादा महँगे नहीं हैं। और बहुत सस्ता है। पहली चीज़ ये है कि बहुत सस्ता है, वन ऑफ द चीपेस्ट सिटीज़ है बुडापेस्ट जो है, वो वन ऑफ द चीप बुडापेस्ट इज़ अ सिटी, हंगरी इज़ अ कंट्री। और इसके अंदर फिर अब आप अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग 1-2 लोगों का कमेंट्स भी आ रहा है कि ऑस्ट्रिया और वियना। वियना आप लोगों ने मेबी सुना होगा, नहीं सुना होगा कि वन ऑफ द टॉप सिटीज़ है, बेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड है। तो लिविंग कॉस्ट बहुत सस्ती है, 700 से 800 यूरोज़ है। रियो पूछते हैं कि स्कॉलरशिप फॉर मास्टर्स फॉर अपर सेकंड क्लास डिग्री। देखो भाई, वही तो कह रहा हूँ, आप अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भेजोगे, वो असेस करेंगे, असेस करने के बाद आपको बताएँगे कि आपकी कितनी स्कॉलरशिप बनती है या नहीं बनती है। जो भी चीज़ है वो आपको मैसेज करके जो है वो सॉरी ईमेल करके जो है वो आपको प्रॉपर्ली बताएँगे। जी, सईद कुमैल है, इज़ देयर अ ब्रांच ऑफ आईबीएस ऑस्ट्रिया आल्सो इन ऑस्ट्रिया? ऑस्ट्रिया के अंदर भी एग्ज़ैक्टली यस। उम्म Heather पूछ रहे हैं कि also have noticed that Hungarian English speaking accent is easier to understand. Like this was the reason I brought him up. I think थोड़ा सा वॉइस का इशू हो रहा था, बट उन्होंने जो अपना बोलना था या चीज़ों के जवाब देने थे वो दे दिए थे, और अगर अभी भी कोई क्लियर नहीं है तो मुझे बता दे। तो इंग्लिश स्पीकिंग एक्सेंट इतना मुश्किल नहीं है, हाँ बहुत आसान था, वो बंदा खुद हंगरी का ही है, तो इतना टेंशन की बात नहीं है। थैंक यू यार, आपकी वॉइस का आपका मैंने मैसेज पढ़ के मुझे हुआ था कि हाँ वॉइस क्लियर है, बट वो उनकी वॉइस शायद मे बी आप लोगों को नहीं मतलब मेरी वॉइस उनको नहीं जा रही थी, मे बी वो लाइक उन्होंने कुछ वो नहीं लगाया था। अच्छा, अच्छा, मैं बिल्कुल उसामा भाई मैं करता हूँ। उसामा भाई मैं पैसे लेके नहीं कर रहा हूँ अभी। मैं पेड सेशंस नहीं दे रहा हूँ। आप समझ रहे हो ना, 5 दिन लेट हो गए। मैं अभी अपनी जॉब का ब्रेक लेके मैं यहाँ पे सेशन कर रहा हूँ। या बहुत सारे लोग जो हैं वो आप ये नहीं सोचें कि आप लाइक द वन एंड ओनली हैं जो आपको मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं और मैं कोई जानबूझ के रिप्लाई नहीं कर रहा। मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा। मेरा आज फ्राइडे, तो मोस्ट प्रोबेबली वीकेंड पे मैं अभी नेक्स्ट सेशन से मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट अपकमिंग डे से मैं पेड सेशन रखूँगा, ताकि थोड़ी-सी टाइम की रिस्पेक्ट की जाए, क्योंकि मेरा ऑब्वियसली थोड़ा-सा इश्यू ये होता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो कोशिश करता हूँ कि कर लूँ, लेकिन मसला सारा ये है कि वो इतनी सारी चीज़ें मेरे साथ टाइम के साथ स्पैन ऑफ टाइम के साथ नहीं हो रही, तो मोस्ट प्रोबब्ली आई एम वर्किंग ऑन डिफरेंट थिंग्स। मेबी आप ये देखोगे मेरी रोज़ वीडियोज़ आने शुरू हो जाएँगी, मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होना शुरू हो जाऊँगा, लेकिन आई एम टेकिंग अ बिट ऑफ अ टाइम। लेकिन अब जो मैं सेशंस मोस्ट प्रोबब्ली इन फ्यूचर रखूँगा, लाइव सेशंस तो रहेंगे ही रहेंगे। मैं ऑनलाइन कोचिंग के भी सेशंस रखूँगा, एंड फॉर दैट यू नीड टू बुक एन अपॉइंटमेंट। क्योंकि इस तरह मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने इतने लोगों के ईमेल रिप्लाइज़ किए हैं, मैंने इतने लोगों के इंस्टाग्राम मैसेजेस किए हैं, वंस दे रिसीव देयर आंसर दे डोंट रिप्लाई बैक विद अ थैंक यू एज़ वेल। तो हम लोगों को ये चीज़ भी देखनी है कि एटलीस्ट कोई बंदा आपको हेल्प कर रहा है, तो एटलीस्ट उसको आप लोग एप्रिशिएट तो करो। हम लोग की कोशिश ये होती है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा बस अपनी इन्फॉर्मेशन लें और साइड पे हो जाएँ। दैट्स नॉट द राइट वे। तो इट्स अ बेटर वे कि मैं एक पूरा सेशन बनाऊँगा कि भाई जो बंदा मेरे साथ सेशन रखता है या कुछ करता है, तो आई विल टेक केयर ऑफ हिम। जैसे मैं यहाँ पे आया जॉब, एक ये होता है कि यार आप कनाडा पहुँच गए। मैं खाली कनाडा नहीं पहुँचा हूँ, मैं अपने करियर पे हूँ। मैं मोस्ट प्रोबब्ली सून आई विल बी फाइलिंग द परमानेंट रेसिडेंसी, पीआर फाइल कर रहा हूँ। तो व्हाट वाज़ द प्रोसेस, आई वो दैट्स माय जर्नी, दैट्स माय एक्सपीरियंस, एंड दैट आई वुड शेयर विद यू गाइस, ताकि आप लोगों की ईज़ी हो जाए जर्नी, इतना कोई टेंशन की बात ना हो। If not Canada, then what are the other options as well? क्योंकि अब कनाडा का वीज़ा रेशियो इज़ ऑलमोस्ट 10 to 15% फ्रॉम पाकिस्तान इन पर्टिकुलर, इंडिया से फिर बहुत बेहतर है। तो दैट्स अ सेशन एज़ वेल, और हम कोशिश करते हैं। अच्छा, मुस्तफ़ा का अच्छा सवाल आया था, मिस्टर एनवाई मेंशन्ड दैट वी कैन गेट सिटिज़नशिप आफ्टर 3 इयर्स विद द लैंग्वेज कंडीशंस ऑफ द 3 इयर्स ऑफ वर्किंग राइट, एंड हाउ मच टाइम टू गेट अप्रूव? अच्छा, मुस्तफ़ा इसका मैं जवाब दे दूँ, मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, है क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टडी वीज़ा पे गए, आपने स्टडी वीज़ा पे 1 साल गुज़ारा। स्टडी वीज़ा पे 1 साल गुज़ारने के बाद आपने 1 से डेढ़ साल आपने स्टडी वीज़ा पे गुज़ारा। 1 से डेढ़ साल स्टडी वीज़ा पे गुज़ारने के बाद आपने क्या किया? यू डिड अ जॉब, राइट? अब आपको ये 2 साल का आपको वो फर्स्ट टाइम है जब आप अपनी मतलब ग्रेजुएट होने के बाद जॉब ढूँढोगे, जो कंपनी होगी वो आपको इनिशियली 2 साल का जो है वो वर्क वीज़ा देगी हंगरी के अंदर, ठीक है? बुडापेस्ट के अंदर। आप उस पे जॉब करोगे, फिर आप 2 साल और कंटिन्यू करोगे, तो आपका टोटल हो जाएँगे 5 साल। 5 साल के बाद आप पीआर सिटिज़नशिप नहीं, पीआर अप्लाई कर सकते हो। परमानेंट रेसिडेंसी, ठीक है? जैसे कनाडा के अंदर होता है। उसके अंदर आपके पास ऑप्शन हो जाता है कि आपको शेंगेन पीआर मिलती है, शेंगेन परमानेंट रेसिडेंसी मिलती है, कनाडा में भी इसी तरह का ही प्रोसेस है। उसके बाद आप फिर मूव इन मूव आउट कर सकते हो, पूरे यूरोप में कहीं भी जा सकते हो। अगर आपको सिटिज़नशिप लेनी है, उसके लिए आपको 3 साल और रुकना पड़ेगा।
जैसे यहाँ पे भी ये कंडीशन है, कनाडा में भी ऐसे ही है, आप 3 साल रुकोगे तो आपको सिटीज़नशिप मिलेगी। मुझे 3 साल रुकना पड़ेगा तो मुझे सिटीज़नशिप मिलेगी पीआर के बाद। यूरोप में भी यही है, 3 साल आपको अपनी पीआर मिलने के बाद 3 साल वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सिटीज़नशिप मिलेगी। सिटीज़नशिप के अंदर जो टेस्ट होता है, जैसे कनाडा के अंदर जो टेस्ट होता है ना, मतलब सिटीज़नशिप का टेस्ट जो होता है, वो होता है इंग्लिश में। उसकी भी कंडीशंस डाल दी हैं हम लोगों ने। लेकिन बुडापेस्ट में जो कह रहा है, वो जो टेस्ट होता है, उसके अंदर हंगरी लैंग्वेज भी आनी चाहिए, तो ये वो कहना चाह रहा था। ये प्रोसेस है और ये टाइमलाइन है। तलहा यासीन, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशंस इन मास्टर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? भाई मैं सबसे यही कह रहा हूँ कि आपकी कुछ भी परसेंटेज है, मैं कोशिश कर सकता हूँ एडमिशंस के लिए, आप टेंशन नहीं लो, एटलीस्ट पास तो हुए हो ना। पास 50% से अबव है या 52% 60% कुछ भी है, मैं उसमें हेल्प कर सकता हूँ। जितनी मैं हेल्प कर सकता हूँ एडमिशन प्रोसेस में, आपका अगर होना होगा एडमिशंस तो उसमें हो जाएगा, अगर नहीं होना होगा तो आपको बता देंगे भाई इस रीजन से आपका एडमिशन नहीं हो सकता, या कोई और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन दे दो, राइट? और उसामा, नहीं भाई मैं आपकी बात समझ गया। ठीक है। ओके, जुनैद खान पूछते हैं एसीसी प्लस ओबीयू विद नो इंटरमीडिएट। हाँ हाँ हाँ, ओबीयू डिग्री है ना उनको, उससे कोई टेंशन नहीं है। ए लेवल्स और इंटर के बेस पे भी हो जाएगा आईवीएस में। ए लेवल्स के बेस पे भी हो जाएगा, इंटर के बेस पे भी हो जाएगा। ऑब्वियसली फिर बैचलर्स करना होगा ना, मास्टर्स तो नहीं करोगे भाई। ऑब्वियसली इंटर और ए लेवल्स के बाद आपका बैचलर्स में एडमिशन होगा, उधर 3 साल का बैचलर्स है। उसके बाद आपके एसीसी के बेसिस पे, ओबीयू के बेसिस पे आपका मास्टर्स में एडमिशन होगा ऑब्वियसली। अच्छा, मुस्तफ़ा पटनवाला कहते हैं, "शरीफ भाई, आई वाज़ आस्किंग अबाउट ऑस्ट्रिया आईबीएस बिकॉज़ द पे स्केल व्हाट आई फाउंड देयर वाज़ अ हायर देन व्हाट आई फाउंड इन हंगरी थ्रू ऑनलाइन फोरम्स एज़ हंगरी इज़ मोर डिपेंडेंट ऑन लोकल करेंसी।" यार, वहाँ पे वैसे तो लोकल करेंसी चलती है, हंगेरियन फ्रैंक्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मैंने देखा है ना, लोग वहाँ पे यूरो में काम कर रहे होते हैं, तो यूरो इज़ अ गुड ऑप्शन। और 200-250 का डॉल यूरो चल रहा है, आई थिंक 220 का चल रहा है, कुछ इसी तरह ही कुछ है। असद रहमान कह रहे हैं, भाई नो वीडियो ऑन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट फॉर स्टडी वीज़ा। आपको, अगर आप ये बात याद रखो कि मैंने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की वीडियो अपने यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की आपने शायद आई थिंक इंस्टा पे मुझे मैसेज किया था, मैंने आई थिंक आपको रिप्लाई किया था, आई डोंट रिमेंबर यू, मुझे याद नहीं है एग्ज़ैक्टली, एक बंदे ने मुझे किया था, उसको मैंने लिंक शेयर किया था अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की, जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की मैंने वीडियो डाल चुका हूँ यूट्यूब पे ऑलरेडी। मुस्तफ़ा बोलता है, "एंड इट इज़ devaluing while of what no Austria operates more on euro. Please do correct me on cause I'm not certain." यूरो इज़ द मेन करेंसी, वहाँ पे यूरो में होता है। हंगेरियन फ्रैंक इज़ रियली चीप, क्योंकि इसी वजह से वहाँ पे लिविंग कॉस्ट जो है वो सस्ती है। लेकिन दैट इज़ गुड, यूरो में आप कमाओगे, आपकी सैलरीज़ यूरो में होंगी, सारी चीज़ें यूरो का होगा। सीपीए सर्टिफिकेशन पे मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा। इनफैक्ट बना चुका हूँ मैं सीपीए कनाडा पे, आप यूट्यूब पे वीडियो देखें, इट्स अ कंप्लीट, वहाँ पे डिटेल में वीडियो मैंने बना चुका हूँ ऑलरेडी। व्हिच इज़ बेस्ट, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा? यार, कोई भी ऑप्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है। कनाडा इज़ मच बेटर इफ यू कंपेयर इट टू ऑस्ट्रेलिया। और आरिफ अली पूछते हैं, स्टडी गैप 9 ईयर्स फॉर अप्लाइंग एमबीए। हाँ, कर सकते हो आप। वहाँ पे आप बिजनेस एनालिटिक्स कर सकते हो, एमबीए इन डेटा ड्रिवन मैनेजमेंट कर सकते हो, आईटी में आप कुछ भी प्रोग्राम्स कर सकते हो, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं यार। मैं बिल्कुल बनाता हूँ भाई, मैं ऑलरेडी बना भी चुका हूँ। ओके, तो मास्टर्स इन केमिस्ट्री के लिए कौन सा प्रोग्राम बेटर है? गाइस, ये थोड़ा सा कनाडा का सेशन नहीं है। ओके, ओके। अली, आप मुझे ईमेल कर दो यार। आप मुझे ईमेल कर दो, अगर आपकी ओबी डिग्री हो गई है, मुझे आपको कहाँ एडमिशन्स की हेल्प चाहिए, मैं आपको एडमिशन में हेल्प कर देता हूँ, मुझे ईमेल कर दो। जिसके डॉक्यूमेंट्स हो गए कंप्लीट, वो तो मुझे ईमेल कर दो एटलीस्ट, ताकि मैं उसको देख सकता हूँ। मुस्तफ़ा कह रहे हैं, यस यू शुड पुट सम फी। यार देखो, मेरा मुझे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, दे आर पेइंग मी आउट, राइट? आई डोंट नीड टू चार्ज पीपल, बट सिंस आई एम प्लानिंग अ गुड, लाइक मैं, अब देखो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स हैं कनाडा में। दे आर नॉट एबल टू क्रैक अ जॉब, एंड द रीज़न इज़ दैट वो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। ओके गाइस, तो फिर इसको सेशन को हम आज यहाँ तक रखते हैं। एक सेकंड, विघ्नेश शेट्टी कहते हैं, हंगरी सीम्स टू हैव, नहीं, इतना इतना टैक्स नहीं है वहाँ पे, इतना टैक्स नहीं है वहाँ पे। और वो हंगरी नहीं है, थोड़ा-सा जी के बाद ए आएगा। जी, बस। तो हम यही सेशन रखते हैं यहाँ तक। अच्छा, ये इनका आया था कि सो वी कैन मूव आफ्टर 2 इयर्स एनीवेयर इन यूरोप आफ्टर गेटिंग अ पीआर ऑन व्हिच बेसिस आई कैन अप्लाई फॉर। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही सीन है, ऐसा ही सीन है, बिल्कुल, 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 बिल्कुल ऐसा ही सीन है। बिल्कुल ही ऐसा सीन है।
चलें गाइस, फिर आज सेशन यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर। और कोई भी क्वेरीज़ हैं आपको, आप लोग या तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो फिर आप contact@sajila.com पे आप ईमेल कर दें। मैं अपनी ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ये मेरी ईमेल आईडी है। इस पे अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और अगर आपकी क्वेरीज़ हैं तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लाइव सेशन रखेंगे, उसमें हम क्वेरीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अप द लाइव सेशन एंड टेक केयर।